This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language instructor. बेटा अपना proper name mention कीजिएगा session के अंदर. आप अपने husbands के नाम से आ जाते हैं तो please जब session में आया करें तो अपना proper name mention किया करें. मैंने आपको पहले भी गाइड किया. अपना मोबाइल फोन का नाम है रेडमी है, उसको चेंज करें. वीवो है, उसको चेंज करें. अहमद रजा है, उसको चेंज करें. अपना प्रॉपर नेम मेंशन करें. ठीक है. Sir, I want to improve my spoken English. What should I do? Sir, मुझे अपनी language skills को improve करना है, तो मैं क्या करूं? Sir, is it compulsory to be a part of a language course? Having spent 20 years in Pakistan in language teaching, what I believe it is 150% compulsory for students to be a part of language course if they want to improve their language skills. I haven't seen any student in my life, but one student who could speak English fluently without any help from language classes. But the reality was that she had siblings, they were living abroad, and she used to talk to them every day. That was the reason she improved her English. But you, if you have any exposure to language, if you are speaking English, if you are listening to someone on daily basis in English, you don't need to join uh, any language class. Look at the students of Roots, Beacon, City. They don't join language classes. They are already good at English. Why? Because they have exposure to this language. Everybody speaks English around them. लेकिन हमारे सराउंडिंग में क्या चल रही है? पश्तो, पंजाबी, सराइकी, उर्दू, पोठोहारी, गुजराती. इंग्लिश किधर है? We do not have English around us. If there were English environment around us, we would be speaking English without any problem, without having any problem. But unfortunately, we do not have English environment. So we need to join such platforms where we can find English people, English environment, where we can listen to someone, where we can talk, right? So for learning language, you need a platform. For learning or for improving, you need to spend time on a platform where you find good language speakers. So Alhamdulillah, you have found SKH, and I'm sure that if you spend 3 months on this platform, you will improve faster. अगर आज भी आप ट्रेडिशनल क्लासेस की तरफ जाते हैं, if you are still looking for traditional physical classes, तो ऐसा ही है, आप स्मार्टफोन छोड़कर कीपैड के फोन को इस्तेमाल कर. ये जो शॉर्ट कोर्सेज है ना, मैंने आपको गाइड किया था शायद पहले भी, आज फिर गाइड कर देता हूँ. जो शॉर्ट कोर्सेज है ना, दे आर वेरी मच फिजिबल, लेस एक्सपेंसिव, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लें कराची के किसी भी अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट में. नाम बताऊं मैं आपको? एक है कंप्यूटर कॉलेज जो मेरे सर्कल में, दूसरा मुझे याद है अरीना, अरीना मल्टीमीडिया, दो, फिर तीसरा एपटेक. आप जरा कभी जाएं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग मल्टीमीडिया के कोर्सेज की पैसे तो पूछ कर आए. आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इतने पैसे मैं कहाँ से अरेंज करूं. But you will find the same kind of course in 2000 rupees, 2500 rupees on internet, on online classes you will find. Am I right or wrong? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? That you will find easily web development course, you will find graphic designing, video editing courses. They all are available in 2000, 3000, 4000, 5000 rupees as per teacher's experience. Free courses are also available on these skills. So it's better to improve your skills, and it's better to join short courses like 3 months, 2 months, 1 month. They all are very effective for your growth.
I advise all of you to improve your skills. Language is a skill, graphic designing is a skill, video editing is a skill, web development is a skill. Learn skills. A person who has skills will not die hungry. याद रखिएगा सर की बात. जिसके पास आज के दौर में स्किल्स हैं वो भूखा नहीं मरेगा. डिग्रियों वालों की कोई अहमियत आजकल खत्म होती जा रही है पाकिस्तान में से. Everybody is working online, and for working online you need skills. You have done masters enough. Now start learning skills. Okay? So सबसे पहले स्किल के अंदर बेटा आप सबसे पहली चीज जब आपकी जबान खुलेगी ना, when you start speaking English, how people are impressed by you. How will you impress people? Or how are people impressed? When you start talking, when somebody starts listening to you, you should have a very good way of speaking. People must appreciate the way you speak. If people don't like the way you are talking, then people will not listen to you for more than 5 minutes, 10 minutes. I still remember students used to say, sir, keep speaking. We enjoy your speaking. Keep on speaking. And I used to keep on speaking for an hour, and students kept on listening. And they used to keep on listening for an hour. They didn't used to get bored. Why? Because the way a person speaks. Right now, you do not have my facial expressions. If you could see my facial expressions, you would enjoy more. But no problem. You can see my screen, and I'm gonna discuss the first pillar of English language, that is sound. Pronunciation. आपके तलफ़ुज़ सबसे पहली चीज है जिसको हमें दुरुस्त करना. I'm not saying that you are very, very poor in pronouncing words. You have 30% problem in this part. And this problem can be resolved in 5 to 6 days. Don't put on anything. Don't put off anything. Don't linger on. Don't leave these things on tomorrow that I will do it tomorrow. No. Whatever I say, you will do it on the very same day, or you will do the very next day. Improve your pronunciation. Sir, how? There are so many ways of improving your pronunciation, but first you must know, you must have an idea that English language has 44 different sounds. ये आज पहली मर्तबा हमें पता चला है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 साउंड्स होती हैं. 44 साउंड्स होती हैं एंड 26 लेटर्स होते हैं. उन 26 लेटर्स की 44 साउंड्स आज तक हमने नहीं पढ़ी. हाँ, if you have done MA English, if you have done MA TEFL, then you must have an idea. मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि बेटा सबसे पहले तलफ्फुज पे काम करो. सब लोग यहाँ पर जमा हुए, सर आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश. सर आपको बुलवा देंगे, आप लिख लीजिए पेपर पे, 4 हफ्ते बाद आप इंग्लिश बोल रहे होंगे. लेकिन आपके बोलने में अगर उस वक्त तलफ्फुज की प्रॉब्लम आ गई तो वो वक्त निकल चुका होगा कि मैं आपसे कहूं कि बेटा जाओ अब जाकर अपना तलफ्फुज बेहतर करो. ये पहली चीज होती है. आपको कल ही मैं बता दूंगा भाई ये 3000 वर्ड्स हैं, इनको वेरीफाई कर लीजिए वेदर यू प्रोनाउंस देम करेक्टली और नॉट. आप वेरीफाई करेंगे 2 घंटे में, वेरीफाई कर लेंगे बहुत ज्यादा, 2 से 2.5 घंटे में 3000 वर्ड्स वेरीफाई हो जाएंगे. एंड यू विल से सर यस आई एम प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स करेक्टली. आ रही है बात समझ? आपको एक बाकायदा मैंने सेशन भी दे रखा है. मैंने आज आपको उसकी एक्सेस भी दे दी थी, शायद आप लोगों ने ज्वाइन किया हो. आपके पास एक यूएस क्वालिफाइड टीचर है, मिस मरियम. शी कंडक्ट्स हर क्लासेस 2 times a डे. एक मैंने आपको एक्सेस दी थी 5 से 6 में, और एक आज रात 10 से 11 में मैं आपको एक्सेस दूंगा मिस मरियम की क्लास की. शी इज योर प्रोनाउंसिएशन टीचर. अच्छा, मैंने ये सेशन क्यों रखा है? कॉम्प्लीमेंट्री है. जब दिल चाहे मैं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल की बात नहीं है. जब मिस मरियम चली जाती है आउट ऑफ कंट्री तो हम उनको उनका सेशन ऑफ करना पड़ता है. लेकिन आजकल वो सेशन हो रहा है, आजकल पाकिस्तान में है वो. सो व्हेन शी कंडक्ट्स हर सेशन 2 times a day, 5 to 6 and 10 to 11, and she works on your pronunciation, she works on the way you speak.
अब आप देखें, बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? Yes, please raise your hand if you are available in the session. Yes, Sarish. Sir, we pronounce appreciate, appreciation, Appreciate, appreciation. That's very good. Yes, anyone else? Raise your hand when you are ready to speak. I will take your name, then you will unmute yourself. Yes, Ramya. Sir, it's Ramya. No, the first two words. First two words. Okay. Appreciate and appreciation. That's very good. What and what's your full name? My full name is Ramya Hafiz. Actually, Ramya. Right. Hafiz is my son name, right? So Oh, that's good. yes, Ikra. Ikra. Beta do words. Appreciate, appreciate, appreciation. Appreciate, appreciation. Yes, Zenat, how will you pronounce these two words? Appreciate, appreciation. अच्छा, और ये वाला वर्ड आपने 9 मैट्रिक में पढ़ा था, ये भी बता दीजिए जीनत। जी, तीसरा वर्ड क्या लिखा है सर ने? कोरी. थैंक यू वेरी मच। सायरा, सायरा। Appreciate, appreciation, and theory. दैट्स वेरी गुड। ताहिरा, ताहिरा। Appreciate, appreciation and theory. थैंक यू वेरी मच। शबीना, बगैर हैंड रेस किए ना अपना माइक ऑन मत किया करें। आपको बोलना है, आप अपना हैंड रेस करेंगे, सर आपका नाम लेंगे, फिर आप बोलेंगे। यस, बुशरा अफजल। Appreciate, appreciation theory. बरीरा, बरीरा। Appreciate, appreciation theory. अच्छा, हमारे पास दो बरीरा हैं, एक बरीरा आजम है और एक ईमान है। अच्छा, Sir, I am Barira Iman. ठीक है बेटा। यस, अनीका। Appreciate, appreciation theory. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब आप ये देखिए, जितने लोगों ने भी बोला एप्रिशिएट बोला, अगर ये एप्रिशिएट है और नीचे एप्रिसिएशन है, तो फिर मैं ऊपर वाले वर्ड को भी तब्दील कर देता हूं, एप्रिसिएट। बंगाली बन जाता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। बंगाली स्पीकर्स के पास शाह साउंड नहीं होती, वो बोलते हैं एप्रिसिएट। सिंधी स्पीकर्स के पास भी शाह साउंड नहीं होती, वो बोलते हैं साबास। तो या तो मैं सिंधी बन जाता हूं या बंगाली बन जाता हूं। ठीक है भाई। अब देखें, एप्रिसिएट तो फिर एप्रिसिएशन। अगर ऊपर एप्रिशिएट कहा है, शाह साउंड है, तो नीचे सारे गा मा, सा कहां से आ गया? नीचे भी शाह साउंड लेकर आई है ना। एप्रिशिएशन, क्या बात कर रहे हैं भाई? एप्रिशिएशन। आज से पहले क्या बोला है? एप्रिसिएशन। आज के बाद क्या बोलेंगे? एप्रिशिएशन। शाह साउंड इज देयर। फिर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, थ्योरी। जाके चेक करना कि ये थ्योरी है या थेरी है। थेरेटिकल सब्जेक्ट्स, इट्स नॉट थ्यू, इट्स थेरी। दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स। और हमारे तो वर्ड्स बहुत सारे बर्बाद हुए हैं। मैंने इसी तरह से दोपहर में कुछ वर्ड्स लिखे थे, सजेस्ट। अगला वर्ड पता है, पूरी पूरी आवाम पाकिस्तान के ज्यादातर लोग सजेशन बोलते हैं, सजेशन। सर गिव मी सम सजेशन। इट्स नॉट सजेशन, इट्स सजेस्शन। टूम ऑफ कायदे आजम, इसको लोग टॉम पढ़ रहे हैं। क्रीचर, एलीट, एलाइट, एलीट
forces, not elite. कितने कॉमन वर्ड्स है बट वी आर मिसप्रोनाउंसिंग. अच्छा देखें, एक और मैं भी आपसे देखें, एक वर्ड लिखता हूं मैं. ये कुछ लोगों से हम और बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं. चले, इकरा बताइए बेटा, ये सर ने 4 वर्ड्स लिखे हैं, इससे आसान वर्ड सर नहीं लिख सकते थे. बताइए क्या लिखा है सर ने. Was, talk, screen, call. यस, बुशरा पढ़िए. बुशरा अफजल. Was, talk, screen, call. यस, सोबिया. सोबिया. सुमैया. Was, talk, screen, call. माशाल्लाह. जैनब. जैनब अपना माइक के ऊपर टैप करेंगे ना तो माइक ऑन हो जाता है. was, हम्म. talk, screen, call. अच्छा, अब मेरी ये बात याद रखने जो मैं अब बताने जा रहा हूँ. जब आप लोगों को सुनेंगे ना तो ये वॉज जो है ना, ये वाज सुनाई दिया जाएगा. वाज. ये जो टॉक है ना, ये टाक होगा. और ये जो कॉल है ना, ये काल होगा. और ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन होगा. अब आप नोट कीजिएगा, when you listen to different people around you, they do not say I was, they usually say I was absent. I called you, talk to me, sir, I can't see your screen. और ये पता है क्यों होता है? आपका जो प्रोनाउंसिएशन का मसला क्यों ज्यादा पैदा होता है? आपकी L1 की वजह से. L1 कहते हैं आपकी मदर टंग. अगर तो आपकी L1 पंजाबी है, पश्तो सराइकी है, पोटोहारी है, पश्तो है, गुजराती है, जब आप लैंग्वेज को सीखेंगे तो आपकी L2 उर्दू होगी, फिर L3 आपकी इंग्लिश है, और फिर आपका तलफ़ुज़ बहुत बिगड़ जाता है. आपकी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज के असरात आपकी थर्ड लैंग्वेज पर नजरअंदाज होंगे. L1 योर मदर टंग. अब हो सकता है आपकी मदर टंग पंजाबी हो, लेकिन आप कोयटा में पैदा हुई तो आपको पश्तो भी आ गई. हो सकता है कोई ऐसा हो, माँ जो है वो पंजाबी बोलती है लेकिन पैदा हुए आप कोयटा में, तो पश्तो भी आ गई. पाकिस्तान की जो लिंगुआ फ्रेंका है, राब्ते की जबान, वो उर्दू है तो वो भी आ गई. अब आप सीख रही हैं इंग्लिश, तो वो आपके लिए क्या हो गई? L4. मुझे आप लोग बता सकते हैं कि आर यू अच्छा, एक होता है बाइलिंगुअल. बाइलिंगुअल का मतलब अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस. मोनोलिंगुअल दुनिया में नहीं होते. कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ एक ही जबान बोलता हो. Majority of the people who are living in this world, they are bilingual. Bilingual means a person who can speak 2 languages. बाई का मतलब 2 होता है ना. और मल्टीलिंगुअल होता है a person who can speak more than 2 languages. So are you a bilingual or are you a multilingual? वन बाय वन आप हैंड रेस करके बता सकते हैं. यस सुमैया. बाइलिंगुअल और बाइलिंगुअल. अनीका. Bilingual. हुरिया. You can write in chat box as well as. यास्मीन. Multilingual. मल्टीलिंगुअल. अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए इंग्लिश L4 है? कोई ऐसा स्टूडेंट है हमारे पास? Yes, यास्मीन. sir, I am. व्हाट्स योर L1? यानी कि माँ की जबान, मदर टंग. L1 is, sir, I am from Skardo, तो L1 is Balti language. एंड L2 जो आपको अपने एनवायरनमेंट से मिली जबान, वो कौन सी थी? Urdu. अच्छा, उर्दू आपको. फिर L3 आपने कौन सी जबान सीखी? Shina. ये कहाँ पर बोली जाती है? वेयर इज इट स्पोकन? Gilgit. गिलगित. एंड L4 नाउ यू आर लर्निंग इंग्लिश. English. तो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है लैंग्वेज को सीखना, कि आपके दिमाग में
अब जो सेंटेंस है वो इतनी लैंग्वेजेस में है, अब आपको वो लेकर जाना है इंग्लिश लैंग्वेज में. सो व्हेन यू आर मल्टीलिंगुअल, लैंग्वेज लर्निंग कैन बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर यू. ओके, आगे चलते हैं. तो बेटा सबसे पहली चीज जो हमें इम्प्रूव करनी है वो है साउंड. वी हैव टू वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन. और कल का जो मेरा पहला लेक्चर होगा, आज तो मेरा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है, कल मेरा पहला लेक्चर होगा हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी. मैं आपको वादे तौर पे बता दूं, मैं इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता है प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज माई टीचर्स दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड द वे you speak, and you must use correct pronunciation. No matter you speak like a local speaker, you all are living in Pakistan, you cannot sound like a native speaker. So don't ever try to sound like, hey, what are you doing, man? You are trying to modify your accent. If you modify your accent, you can modify for 5 minutes. After 5 minutes you will come on your natural tone. You have been listening to me for 30 minutes. Am I speaking with the same tone? You may also have attended my afternoon session. Was I speaking with the same tone? Was I speaking with the same tone? मेरे टोन में कोई तब्दीली आपको महसूस होती है? जब मैं मॉडिफिकेशन महसूस होती है? मैं जो अपना नेचुरल स्टाइल है उसी से बात कर रहा हूं मैं. लेकिन अच्छा, आप देखो, सुनना. Hey, so dear students, in today's class, we are going to learn about pronunciation. Are you ready? Are you ready for the very fast lecture? अब इस टोन में कब तक बात कर लेगा सामने वाला? So do not modify yourself. Do not fabricate yourself. Speak with a natural tone. Natural tone is the best way of speaking. But always focus on the right pronunciation. If your every word is pronounced correctly, people will appreciate you. ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है मेरी? पहला फोकस समझ आ गया. हमें पहली चीज किसके ऊपर काम करना है? We will work on pronunciation, right? और इसका ऊपर कल लेक्चर 1 होगा और उस पर एक असाइनमेंट आपको मिलेगा, आप उसको फॉलो करेंगे पूरे वीक. ठीक है, यस. आगे चलते हैं. सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब. आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं सर हमारे अल्फाज ऑर्डर में नहीं आते, ख्यालात आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन सर हम उनको कंबाइन नहीं कर पाते? ऐसा है? You have so many words in your memory. Ikra, does it happen to you that sir I have all the words but the words do not come in the right order? Yes, sir. It usually happens. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कि हमारा वर्ड ऑर्डर सही नहीं जुड़ता. हम यूं सोच रहे होते हैं जैसे मैंने कल गाड़ी खरीदी थी. अब मैंने कल गाड़ी खरीदी थी तो मैंने कल, अब मैंने कल कहा, मैंने कल गाड़ी खरीदी थी, मैंने आई कल, यस्टरडे, गाड़ी 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 कार परचेज. ऐसी इंग्लिश हमारी है. हकीकत में हम इस तरह की, आई यस्टरडे कार परचेज्ड. इकरा रशीद, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस सेंटेंस को सही करने में? जी सर. बताइएगा. I bought a car आई yesterday. परचेज्ड ही लगा लेते, कोई मसला नहीं हो. Purchased. जी जी आई जी. परचेज्ड, और क्या लिखो? कार. A कार. car yesterday. जी जी. माशाल्लाह. अब देखिए जबान से खुद ही निकला आ, जबकि मैंने लिखा नहीं था. मैंने तो सिर्फ लिखा था आई यस्टरडे कार परचेज्ड. आई जी सर. परचेज्ड अ कार यस्टरडे. Yeah. आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है. जैनब, क्या इसको Thank you इसी so much. सेंटेंस को, जैनब जी. क्या हम इसी सेंटेंस को किसी और तरह से जैनब हम बना सकते हैं? सर किसी और तरह से परचेज की जगह हम बॉट लिख सकते हैं. परचेज की जगह पर हम बॉट लिख सकते हैं. चले, मान लिया आपकी बात, बॉट लिख दिया.
और कोई सैरिश, कोई और तरीका है? ये सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, yesterday I purchased a car. यस्टरडे, बस ये सुनने के लिए कान तरस रहे थे। यस्टरडे आई परचेज्ड अ कार। कोई और तरीका जहन में आ रहा है किसी के? Yesterday, a car purchased by me. नहीं, बर्बाद कर दिए। बिल्कुल, ये हमारी वाली इंग्लिश बोल दी आपने, पाकिस्तानी इंग्लिश बना दिया आपने। इंग्लिश बोली, यू स्पोक इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। यस, और I purchased a car yesterday. A car purchased by me yesterday. आकार, मैं आपके सेंटेंस को सही कर देता हूँ। मैं पैसिव नहीं चाह रहा, मैं इसी फॉर्मेशन को मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि आप पैसिव बनाए। A car was purchased, इसमें बाय मी लगाना जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है। A car was purchased yesterday, बाय मी नहीं लगाऊंगा, वरना पैसिव से लड़ाई हो जाएगी मेरी। अब आप यूं भी लिख सकते हैं ना, I yesterday, ये वाला जुमला कैसा लग रहा है? I yesterday bought a car। yesterday को यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ, कोई मसला है? कोई मसला नहीं। हमारी प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम बेटा यही है, अल्फाजों की तरतीब, कि कौन सा वर्ड को हम कहाँ लिख सकते हैं और कहाँ नहीं लिख सकते। और उसकी वजह बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब हम उर्दू में सोचते हैं तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं, और इंग्लिश और उर्दू का कोई मिजाज नहीं मिलता, क्योंकि उर्दू का जो वर्ड ऑर्डर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, उर्दू का वर्ड ऑर्डर। जैसे मैंने क्लास ली थी, अब मैंने क्लास ली थी, आई क्लास टुक, आई क्लास टुक। इसको सही कर सकते हैं? I took a class. आई टुक क्लास। अच्छा, इस तरह की एक्सरसाइज भी आती है जिसको हम लोग कहते हैं जंबल वर्ड्स। आपने, याद है आपको स्कूल लाइफ के अंदर शायद आपने ऐसी कोई एक्सरसाइज की हो, बहुत सारे वर्ड्स लिखे होंगे, वो आगे पीछे हुए हुए होते हैं, उनको सेट करना होता है। कर सकते हैं? आज एक छोटा सा असाइनमेंट दे दूं 10 सेंटेंसेस का, उसमें मैं वर्ड्स आगे पीछे कर दूंगा। आज रात 11:15 मैं आपको वो असाइनमेंट दूंगा, और कोशिश कीजिएगा कल का सूरज निकलने से पहले उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और उसकी आंसर शीट आपको मिलेगी रात सुबह 9 बजे। ठीक है? 10 या 15 सेंटेंसेस दूंगा, बस उन वर्ड्स को आगे पीछे कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, जैसे राइट्स, मैं एक डेमो दे देता हूं कि मैं किस तरह से, ये आपके वर्ड ऑर्डर पे इससे काफी आपको फायदा होगा। देखिए, राइट लेटर ही एवरी डे, एवरी मंथ टू आ सारा। अब मैंने आपसे कहा कि क्या आप इसको कुछ कर सकते हैं, चेंज बस इन्हीं वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस क्रिएट करना है। सैरिश कर रही है, कहां से उठाओ? सर मुझे स्क्रीन अभी नजर नहीं आ रही है। He अब आ रही है? जी सर, जी सर। He बता- writes a letter to a Sarah every month. He writes Writes a letter a letter to सारा। to Sarah every month. हो जाएगी एक्सरसाइज ऐसे सॉल्व? दे दूं आज Yes के sir. सेशन के बाद, Yes sir, दे दे। ताकि आपको पता चले कि आपके वर्ड्स कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है। 10 दूं या 15 दूं या 20 दूं या 30 सेंटेंसेस दे दूं? 20। 20, चले। 20 sentences will be given to you and you will have to write them correctly in a correct word order। ये कहलाता है सिंटेक्स, ये कहलाता है अल्फाजों की तरतीब। और इसके अंदर भी मेरे बहुत तफसीली लेक्चर्स आपके साथ स्टार्ट होंगे, जिसके लेक्चर का नाम है फॉर्मेशंस। ठीक है? अब आ जाए तीसरी चीज,
तीसरा सबसे बड़ा मसला हमारे स्टूडेंट्स का वो है ग्रामर। सर आई डोंट वांट टू टेक ग्रामर क्लास। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं वो मेरी बात 5 मिनट के लिए सुन लें, तो उसके बाद वो तौबा करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। आपको ग्रामर में जो आता है आज सर वो आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, देखिएगा। शी कॉल्स मी, मतलब बताइए सोबियस का। शी इज कॉलिंग मी। सायरा वो इसका मुझे कॉल करती है, वो मुझे कॉल कर रही है। वो मुझे कॉल करती है, वो मुझे कॉल कर रही है। शी हैज कॉल्ड मी मैनी टाइम्स। ये आता है आप लोगों को, बता दीजिए। कॉल कर सकती हूँ। उसने कई दफा मुझे फोन किया है। शी हैज कॉल्ड मी मैनी टाइम्स। शी हैज बीन कॉलिंग मी फॉर 2 days। बता दो ना। वो मुझे 2 दिन से कॉल कर रही है। शी कॉल्ड वो मी, मुझे 2 दिन से कॉल कर चुकी। कर रही है, कर रही है, बहुत तंग करती है मुझे। शी कॉल्ड मी यस्टरडे। बता दो ना। उसने मुझे उसने कल मुझे कॉल कल कॉल की थी। शी वॉज कॉलिंग मी लास्ट नाइट। उसने मुझे कल रात मुझे को रात कॉल को की थी। कॉल कर रही थी। मैंने उठाया नहीं। बेगम देख लेती, मसला हो जाता। शी हैड कॉल्ड मी व्हेन यू केम। शी हैड कॉल्ड मी व्हेन यू केम। उसने मुझे कॉल की जब तुम आए। वो मुझे कॉल, जब तुम आई वो मुझे उसने मुझे कॉल की। जब तुम आई वो मुझे फोन कर चुकी थी। शी हैड कॉल्ड मी व्हेन यू केम। शी हैड कॉल्ड मी व्हेन यू केम। सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे ग्रामर आती है। हाँ, मैं वही लिख रहा हूँ जो तुम्हें आता है, बस वही तो लिख रहा हूँ मैं। अब उसके बाद जो लिखना शुरू करूंगा फिर मुझे बताना तुम्हें क्या आता है। शी हैड बीन कॉलिंग यू, शी हैड बीन कॉलिंग यू फॉर एन आवर। वो तुम्हें 1 घंटे से कॉल कर रही थी। शी विल कॉल यू, वो तुम्हें फोन करेगी। शी विल कॉल यू टुमारो। सही है भाई। ये वो नॉलेज है जो आपको स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के अंदर आपके जहनों में बिठा दी गई है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सर? ये तो हमें आता है, ये सारी चीजें हमें दिमाग में हमारे अलर्ट हो जाती हैं, हमें समझ आ जाती हैं। लेकिन अब आप देखें इन्हीं चीजों के अंदर आप गलतियां करते हैं। ये देखें, शी हैज कॉल्ड मी लास्ट नाइट। शी हैज कॉल्ड मी, वो गुज़िश्ता रात मुझे फोन कर चुकी है। आपके जहन में जबान में जुमला आया शी हैज कॉल्ड मी लास्ट नाइट, वो मुझे गुज़िश्ता रात फोन कर चुकी है। जुमला गलत। इफ शी विल कॉल मी टुमारो, अगर वो मुझे कल फोन करेगी। इफ शी विल कॉल मी टुमारो, सर टुमारो विल ही लगेगा। हाँ तो मैंने लगा तो दिया। इफ शी विल कॉल मी टुमारो आई विल टेल हर एवरीथिंग। जुमला गलत। क्या बात कर रहे हैं भाई? जी हाँ, जुमला गलत। जुमला बिल्कुल गलत, क्योंकि इफ के साथ विल नहीं लगता। आप जुमला इस तरह से कभी नहीं बना सकते। आपका जुमला गलत हो गया है। इफ शी कॉल्स होता है तो इसको हमने यहां से काट दिया। शी हैज कॉल्ड मी, ऐसा कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं लगता। आई बात समझ? अभी टेंसेस में बहुत सारी बातें जो टेंसेस में ही आपकी गलत हो जाएंगी। जैसे अब आप जरा नीचे देखिएगा, मैंने लिखा है आई नो यू। मैंने कहा इसका प्रोग्रेसिव बनाओ, आपने बना दिया आई एम नोइंग यू। माजरत, माजरत। आई एम नोइंग यू हो ही नहीं सकता। नो अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं ले सकता। हमें ये बात आज सुनने को मिल रही है कि ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं लेते, जिनको हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहते हैं। आई सी, मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं अली आ रहा है। आप लोग कहेंगे आई एम सीइंग दैट अली इज कमिंग। जुमला गलत। आप कहेंगे आई कैन सी। सी अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं लेता, और अगर लेता है तो अपना मतलब बदल देता है। सीन का मतलब होता है मुलाकात करना। आई एम मीटिंग डॉक्टर टुनाइट।
मैं 2 दफा मरी गई हूँ, आई हैव गॉन टू मरी ट्वाइस। हर बच्चा यही जुमला बनाता है, मैं 2 दफा मरी गई हूँ, आई हैव गॉन टू मरी ट्वाइस। जुमला गलत। आप कभी भी आई और वी और यू के साथ गॉन नहीं लगाते, आप बीन लगाएंगे। अब यहां से मुझे बताओ तुम्हारे ग्रामर, हाँ ये तुमने टेंसेस पढ़े, ये टेंसेस ही चल रहे हैं। आई हैव डन मास्टर्स इन 2020, जुमला गलत। अभी बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कभी माजी का वक्त नहीं आता, तो आप कहेंगे आई डिड मास्टर्स इन 2020, जुमला पास्ट सिंपल में शिफ्ट हो गया। फिर आप देखें, आपको स्ट्रक्चर्स तो हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं आते स्कूल लाइफ में, ये तो लैंग्वेज क्लास में ही आते हैं। आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी, मेरा बिरयानी खाने को दिल चाह रहा है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। ये जुमला नहीं बना सकते थे हम ना, बहुत सारे ऐसे जुमले हैं। मैं आपको एक जुमला दे देता हूँ, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं, उठना पड़ता है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सर। अब उठना पड़ता है, ये जिम्मेदारी है, आई हैव टू। I have तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ, अब बनाकर दिखाओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम चली जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं सर आपने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यू हैड बेटर लीव, यू हैड बेटर लीव। अब देखो, ये जुमला कभी नहीं सुना होगा, यू हैड बेटर। प्रेजेंट की बात हो रही है, यू हैड बेटर लीव मी अलोन। तुम्हारे लिए बेहतर होगा मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा मेरी बहन से बात करना छोड़ दो, वरना अपनी बहन को रोक लो बेटा। यू हैड बेटर स्टॉप टॉकिंग टू माई सिस्टर। मैं तो छोड़ दूंगा, अपनी बहन को रोक सकते हो तो रोक लो, वही मुझे फोन करती है, वही मेरा रिचार्ज कराती है। यू हैड बेटर लीव मी अलोन। हैड बेटर का स्ट्रक्चर कभी नहीं पढ़ा। वो इंग्लिश सीखने पे तुला हुआ है। अब ये तुला हुआ है सर, ये क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, नहीं पता। ही इज बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। स्ट्रक्चर्स तो हमें याद ही नहीं है भाई। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ताके ताके ये ताके को क्या कहेंगे भाई, ताके बीच में ये जो छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, ये वर्ड्स ही हमें so नहीं। that सो दैट, माशाल्लाह, सो दैट कहीं वो आ ना जाए, कहीं बारिश ना हो जाए। अब भाई बारिश होती है, बारिश हो रही है, अब ये कैसा जुमला है, अब बेटा छतरी ले जाओ कहीं बारिश ना हो जाए। बातें तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत अमीर जादी है। अब इस तरह के जुमले में स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये सीधे वो बातें तो ऐसे कर रही है, शी इज टॉकिंग जैसे अमीर जादी है, ऐसे बहुत पैसा है इसके पास, है भाई। बातें तो ऐसे करी जैसे बहुत खूबसूरत है, बात पढ़ा तो ऐसे रहे जैसे ये बहुत कुछ जानते हैं, है भाई। एज इफ का स्ट्रक्चर आता है। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर्स है जो कभी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में एक्सप्लोर ही नहीं हुए, और ये आपकी कभी घरेलू लाइफ में भी एक्सप्लोर नहीं होंगे, ये यूट्यूब पे भी एक्सप्लोर नहीं होंगे। जो मैं आपको डिस्कशन क्लास देता हूं, अभी आपकी डिस्कशन क्लास होगी, आप नोट कीजिएगा, डिस्कशन क्लास के ऊपर और नीचे टंग ट्विस्टर्स, फ्रेजल वर्ब्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं। कम से कम 100 स्ट्रक्चर्स आप लोगों को इस कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, और वो डिस्कशन क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। तो आप डिस्कशन क्लासेस में रोज आना, ऊपर नीचे आप देखा करें, वो टंग ट्विस्टर्स और स्ट्रक्चर्स अपने पास नोट किया कीजिए। 3 महीने का कोर्स मुकम्मल करेंगे तो आपकी नोटबुक में 100 स्ट्रक्चर्स लिखे हुए होंगे। आज देखिएगा, जब आप अभी क्लास ज्वाइन करेंगे, डिस्कशन की क्लास होगी इसके बाद, तो आप ऊपर और नीचे देखिएगा, कहीं पर टंग ट्विस्टर्स होंगे, कहीं पर फ्रेजल वर्ब्स होंगे, कहीं पर कॉमनली यूज स्ट्रक्चर्स होंगे। तो मैंने 100 स्ट्रक्चर्स ऐड किए हैं आपकी डिस्कशन क्लासेस के अंदर खुद अपने हाथों से। फिर उसके बाद आए मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स देखें बेटा, हैव नो नॉलेज। मॉडल वर्ब्स की एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे स्कूल लाइफ में पढ़ाई गई। हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, बस। फिर मे आई कम इन, मे आई गो टू वॉशरूम, बस। साइंस की किताबों में पढ़ लिया, लिविंग थिंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। मॉडल वर्ब्स का इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं पड़ता। आज पहली दफा एक पता चला कि ऑट टू भी कोई चीज होती है। देखें, ही ऑट टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए। ऑट टू बराबर है शुड के, ही शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए। मस्ट इनके अब्बू जान है, स्ट्रॉन्गर है, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए। और
शुड की जगह पर आप मॉडल फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, ही इज सपोज टू वर्क हार्ड, बराबर है किसके, ही शुड वर्क हार्ड। आज पता चले कि मॉडल फ्रेज भी होता है। हमारी तो बेटा टेंसेस पे जाकर हमारा सड़क खत्म हो जाती है, उसके आगे सड़क ही नहीं है हमारी ग्रामर की, और फिर भी हम लोग पता नहीं क्यों कहते हैं हमें तो ग्रामर आती है। अब जैसे सायरा ने कहा, सर देखिए अनुषा मुझसे बदतमीजी कर रही है। मैं कहा ठीक है बेटा, आप दिल छोटा ना करें, आप गुस्सा ना करें, मैं अनुषा से बात करता हूँ। ये जो बात करना है ये फ्यूचर की बात है, हम लेकिन उर्दू में देखें कैसे बोलते हैं, मैं बात करता हूँ, इट मीन्स मैं बात करूंगा, आई विल टॉक टू हर, आई विल टॉक टू हर। आप विल लगा रहे हैं लेकिन उर्दू में ताती तैयार है, मैं बताता हूँ आपको, आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल लेट यू नो। आप ये नहीं कहेंगे आई टेल यू, आई टेल यू, आई टेल यू का मतलब तो मैं बताता हूँ, मैं बार बार बताता हूँ आपको, लेकिन अभी आप कह रहे हैं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसको इसी तरह से बोला जाता है, मैं सर आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, आई विल इन्फॉर्म यू। अब आप देखें आपकी ग्रामर कहां पर है और अभी आपको कहां तक जाना है। अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ म्यूजिशियन, इफ आई वर एन आर्टिस्ट, अगर ऐसा होता, इफ आई वर एन आर्टिस्ट, इफ आई वर अ डॉक्टर। अब आई के साथ वर कौन लगाता है सर, हम लगाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप वर लगाते हैं। टाइप 2 के अंदर इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर, इफ इट वर। क्या बात कर रहे हैं, पहली दफा सुना है भाई। इफ इट वर संडे, अगर आज इतवार होता, अगर आज इतवार होता, इफ इट वर संडे आई वुड बी स्लीपिंग, मैं सो रहा होता। मेरी बातें समझ आ रही है बेटा, आपको अब समझ आई कि हमें हमें ग्रामर कितनी आती है, कहां तक आती है। यस सर। हमें तो सिर्फ ग्रामर आती है टेंसेस तक, और जिस पर हम बहुत नाच रहे होते हैं, हमें आती है भाई साहब, बेसिक आती है। बेसिक 1 महीने मेरी बेसिक चलती है, और बेसिक से ही आपकी जबान का ताला तोड़ देता हूं मैं। ये बात जहन में रखिएगा, बेसिक लेवल गिव्स यू फ्लुएंसी। नहीं मैंने बेसिक नहीं पढ़नी है, आई वांट एन एडवांस लेवल। क्यों सर, बस सर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती, तो आप मेरा बेसिक लेवल ज्वाइन करें, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल गेट फ्लुएंसी। क्योंकि एडवांस इंग्लिश के अंदर हम फ्लुएंसी पे काम थोड़ी नहीं करते, वहां तो सिर्फ आपकी नॉलेज पे काम होता है कि भाई देखें ये जुमला ऐसा है, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, बोलना आपको आना चाहिए। लेकिन अब आपको एक सिंपल सेंटेंस बोलना नहीं आ रहा, फिर आप एडवांस इंग्लिश में कहाँ जाएंगे। और मैं कहता हूँ बस ये 3 महीने का कोर्स कर लो, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ ज्यादा करना हो तो मैं 2 किताबें बता दूंगा, वो खरीद लेना, बस उसको सेल्फ स्टडी करते रहना। तुम्हें कोई नहीं गिरा सकेगा, तुम्हारी नॉलेज इस लेवल पर होगी, तुम्हें कोई क्रॉस नहीं कर सकेगा। ये बात 100% ट्रू है, ठीक है। राइटिंग, सर आई वांट टू इम्प्रूव माय राइटिंग, तो बेटा राइटिंग इज पैसिव वॉइस के अंदर इज अ रिटन लैंग्वेज। अगर आप पैसिव पढ़ेंगे तो आप राइटिंग की तरफ जाएंगे, और अगर आपको राइटिंग इंप्रूव करनी है तो आपको पैसिव वॉइस आना चाहिए। विदाउट नोइंग पैसिव यू कैन नॉट स्टार्ट राइटिंग। आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन राइटिंग की जान है ये। स्पीकिंग में तो आप इनको गायब कर देते हैं, लेकिन अब आप लिखेंगे तो आपकी ये सारी चीजें सामने आती हैं। और आपको पता है आइल्स राइटिंग और आइल्स स्पीकिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स किस चीज के घटते हैं, इन्हीं चीजों के घटते हैं, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, और ये सब ग्रामर में आती हैं। और चौथा पिलर है आपका वोकैबुलरी। विदाउट वोकैबुलरी यू आर नथिंग। वोकैबुलरी इट्स जस्ट लाइक बुलेट्स। मैं वोकैबुलरी को बुलेट्स कहता हूं, ये आपकी बुलेट्स हैं। जितनी ज्यादा आपके पास बुलेट्स होंगी उतनी ज्यादा आप गोलियां चलाएंगे। लेकिन आप अगर आपने 4 वोकैबुलरीज को याद किया, 4 वोकैबुलरीज याद करने के बाद आपने 4 वोकैबुलरीज याद करने के बाद आपने छोड़ दिया, then your speaking will be limited, your speaking will be limited। आ गई बात समझ, ठीक है। सो आई एडवाइस ऑल ऑफ यू कि वोकैबुलरी को अपना रूटीन बनाएं। अगर वोकैबुलरी रूटीन में लेकर आए 5 वोकैबुलरी, 5 वोकैबुलरीज एवरी डे,
सर किस तरह से याद करें? सर आपको आने वाले सेशन में मेरा अभी एक वोकैबलरी के ऊपर बड़ी जबरदस्त क्लास में रिकॉर्ड करवाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा इसरार कर रहे हैं वोकैबलरी के ऊपर. सो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड वन लेक्चर ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, कि वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें. आपके लिए तो बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है. आप लोग अपने साथ एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड रख लिया करें, पेपर पे लिख लें, रजिस्टर आप एक मेंटेन कर लें अपनी वोकैबुलरी का. मेरे पास आज भी 21 साल बाद भी वो आज मेरे पास डायरी मैंने संभाल के रखी है, जिसपे मैं एज अ स्टूडेंट जिसपे मैं लिखा करता था. किसी दिन मैं आपको सेशन के अंदर वो डायरी का डिस्प्ले शो करूंगा, वरना मैं एक रिकॉर्डिंग बनाकर आपको भेजूंगा कि हमारे पास एक पॉकेट डायरी हुआ करती थी. आप लोग एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप वोकैबुलरी को नोट करें, और उस वोकैबुलरी की नोटबुक को हमेशा खोल के रखें अपने सामने व्हेन यू आर टेकिंग क्लासेस, एंड यूज दोज वोकैबुलरी. 5 वोकैबुलरी रोज आना, एंड यूज देम 5 टाइम्स 10 टाइम्स इन डिफरेंट सेशंस. एक दफा आपने यूज करी, आप 2 दफा 3 दफा, फिर आप भूलेंगे नहीं. एंड रिपीट देम, रिवाइज देम. सो वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद आ जाइए लिसनिंग. सर आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश. मैं सिर्फ एक बात कहूं, स्टार्ट लिसनिंग. आप लिसनिंग स्टार्ट कर दें. इफ यू स्टार्ट लिसनिंग यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. बस आप लोग कहते हैं सर पैसे दिए सुनने के लिए, थोड़ी नहीं दिए, घर पे भी सुनो यहाँ पे भी सुनो. सर हम चाहते हैं हम बोलें, तो जाइए डिस्कशन क्लास में जाकर बोलिए, जाइए स्पोकन क्लास में जाकर बोलिए. ठीक है? जितना आप सुनेंगे ना, अगर आप फॉर एग्जांपल 10 मिनट बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको इसके लिए कम से कम कम से कम आपको 2 घंटे रोजाना सुनना पड़ेगा. अगर, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई कोर्स में ऐसा करें, 2 हफ्ते तक एक एडवाइस 2 हफ्ते तक 2 घंटे रोजाना सुने. प्लीज एक्ट अपॉन दिस एडवाइस. मेरी इस एडवाइस पे जिसने अमल कर लिया, संडे का आता सुने, लेकिन सुनने के आदाब. सर आई लिसन एंड आई अंडरस्टैंड. रोटी पका रही है और सुन रही है, नहीं, ये वाली लिसनिंग नहीं चाहिए. व्हेन यू लिसन यू पे फुल अटेंशन. You easily understand when you listen to any English speaker, or when somebody is speaking English, you understand. लेकिन जो काम आप लोग नहीं करते, आज सर आपको बता रहे हैं, वो आपको करने हैं. सबसे पहला काम, यू हैव टू टेक नोट्स. आपको समझ तो आती है ना? अब देखिए यहाँ पर मैंने लिसनिंग के आदाब लिखे हुए. टेक नोट्स. आप जब सुनते हैं तो मेमोरी में आपकी जाता है, दिमाग में रहता है, वॉट एवर यू आर लिसनिंग. लेकिन याद रखो वो पता है कितनी देर रहता है? 10 सेकेंड, शायद 5 सेकेंड. इफ आई स्टॉप स्पीकिंग वो 10 सेकेंड तक भी रहेगा. बट व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग, और डेटा आपके कानों से दिमाग में जा रहा है, और वो जो डेटा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में था वो बाहर निकल रहा है, डिलीट हो जाता है. होता है? ऐसे नहीं होता. व्हेन यू लिसन टू समवन, डेटा कहाँ गया? दिमाग में. और कौन सी मेमोरी में गया? शॉर्ट टर्म मेमोरी में. कितनी देर रहेगा? 5 सेकेंड. वक्त है, लिख लो. लेकिन तुम नहीं लिखते. तुम्हें लिखना होगा. अगर लिखोगे तो वो बात याद रह जाएगी. वो डेटा स्टोर करने की आदत डालिए. आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर ऑलमोस्ट 55 minutes. I have been speaking for 55 minutes. And आपने बताइए वो कौन से वर्ड्स हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने अपनी मेमोरी में सेव कर ली? बताइए. एम के साथ आईएनजी वर्ब नहीं आता.
वेरी गुड। नो के साथ वर्ब आईएनजी नहीं आता। नोट भी कर लिया इस बात को या सिर्फ सुना? स्क्रीनशॉट ले लिया या? वेरी गुड, यस। और कौन सा वर्ड आपके जहन में रह गया? यस, यास्मीन, हुरिया, सुमैया। हैव के बाद गॉन नहीं आता, हैव बीन फॉलो होता है। आई हैव बीन, लेकिन आई भी याद रखिएगा, आई हैव बीन टू। हाँ, आई हैव बीन हाँ, एंड ये नहीं कहते आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, यू हैव गॉन। हमेशा कहते हैं आई हैव बीन टू, यानी कि मैं कहीं से होकर आ गया हूँ। आई हैव बीन टू कनाडा, मैं कनाडा से होकर आया हूँ। आई हैव बीन टू कनाडा। आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया वंस। आ गई बात समझ? यानी कि जब हम और टू। और टू पहली दफा आज सुना, और टू शुड का भाई मुझे और मस्ट जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। मस्ट उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये पहली मर्तबा शायद, क्योंकि मॉडल वर्ब्स पढ़े ही नहीं है हम लोगों ने, तो जी, और यूज टू, यूज टू। यूज टू, बी यूज टू, इफ के साथ आई, और फिर आपने उसके साथ वॉस के बजाय वर लगा दिया। वाह भाई वाह। इफ आई वर अ डॉक्टर, आई के साथ तो वॉस आता है। ये कौन सी इंग्लिश है? ये बहुत कॉमन इंग्लिश है। यानी कि बेटा, व्हेन यू लिसन यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब आप सुनते हैं तो आपको समझने की बहुत जरूरत होती है। आप अगर आपको समझ आएगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो समझ आना काफी नहीं है। वो डाटा जो जहन में जाकर स्टोर हो रहा है उसको नोट्स बना लें उसके, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपकी मेमोरी में नहीं रहेगा, तो आपके कम से कम पेपर पे रहेगा। फिर आप उसको रिपीट करें, रिवाइज करें। जब आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो फिर पता है क्या होता है, फिर आप उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल जब आप उसको करेंगे तो याद रखें, रिकॉलिंग के लिए ऐसा होता है ना, आप लोग कहते हैं कि सर सर वो कौन सा वर्ड था, वो क्या कहते हैं उसको, वो कौन सा वर्ड था, वो क्या कहते हैं उसको। ऐसा इसलिए होता है कि हम चीजों को रिपीट नहीं करते, रिवाइज नहीं करते। अगर हम चीजों को रिपीट करने की आदत डालें तो आप यकीन करें कि हमारा जो रिकॉलिंग होती है, हमारी जो फ्लुएंसी होती है, उस पर असर पड़ता है। वी गेट स्टक while speaking because we don't repeat, we don't revise, right? So ये बात याद रखिए, listening is the key to speaking। आपको, और जब आप स्पीकिंग पे फोकस करेंगे तो स्पीकिंग में सबसे पहली बुनियादी चीज है प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद इंटोनेशन, उसके बाद स्ट्रेस, और उसके बाद आती है फ्लुएंसी। आप डायरेक्ट स्पीकिंग पे कहां पर जंप लगाते हैं? आई वॉन्ट फ्लुएंसी, व्हाट अबाउट द राइट प्रोनाउंसिएशन? गो स्ट्रेट एंड टेक अ लेफ्ट टर्न, आ गई फ्लुएंसी। Go straight, take a left turn. You will find my school teacher, Sir Abbas. He was very nice. Go and talk to him. I called him in the morning. कौन सा तलफ्फुज़ है भाई ये? कौन सी? ये चीजें इंप्रूव करनी है स्पीकिंग में। सबसे पहले अपने तलफ्फुज़ पे काम करेंगे। कल पहला लेक्चर होगा आपका, लेक्चर नंबर 1, हाउ टू improve pronunciation, accent and fluency। ठीक है बेटा, got it? Sir, I want to improve my writing। Start reading। जो लिखना चाहते हो उसको रीड करना शुरू करो। कोई क्लास, याद रखना जिंदगी में मेरी एक एडवाइस, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन राइटिंग क्लासेस। पैसे बर्बाद मत करना राइटिंग की क्लासेस के ऊपर। राइटिंग की क्लासेस के ऊपर पैसे बच्चे बर्बाद कर देते हैं, कोई तुम्हें राइटिंग सिखा देगा। मैं आपको एक आसान सा फॉर्मूला दे देता हूँ, बेटा आप जाइए और जा करके जो लिखना है उसको रीड करना शुरू कर दें। जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतनी जल्दी आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। ठीक है? लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग एंड रीडिंग इज द की टू राइटिंग। आपकी दोनों टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया है। मैंने आपसे कहा है कि जब हमारे पास, हम देखते हैं हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं एक सेशन में 15 से 20 स्टूडेंट्स रहें। तो अगर ज्यादा होते हैं तो हम आपको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।
मिस तबस्सुम आप अपनी स्लाइड यहीं पर शेयर करेंगी और अभी मिस फरा के साथ कुछ स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मैं उनको डिवाइड कर रहा हूँ, वेट कीजिएगा। आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आने वाला है, जैसे ही आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा आप क्लिक करेंगे और मिस फरा के साथ एक रूम में चले जाएंगे। उस रूम में आप होंगे, मिस फरा होंगी। अब अभी हमारे पास 37 स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको बराबर बराबर में हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। 35 ऑलमोस्ट 16 17 18 यस, ज्वाइन का ऑप्शन आ गया होगा आपके पास। मिस तबस्सुम आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, जिनके पास ज्वाइन का ऑप्शन आ गया है वो ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लें और मिस फरा को ज्वाइन कर लें। Thank you very much. Miss Tabassum, you may share your screen, please.